मृत व्यक्ति पण जीवित एक विशाल छोटी मोटी नगरी नहीं है और इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। केवी शक्ति हशे अने मरा हुआ आदमी जीवित होता था, गूगल पर माहिती जोई ले। सारे भस्म हुए। शिवलिंगोનું ગામ 1.25 लाख शिवलिंग थी। उसने अपनी छाती फाड़ी। મિત્રો અત્યારે હું એક એવા ગામમાં આવી ગયો છું, ઉત્તરાખંડમાં આવેલું લાખા મંડલ. કહેવાય છે કે અહીંયા મૃત વ્યક્તિ પણ જીવિત થઈ જાય અમુક ક્ષણ માટે. પહાડોની વચ્ચે આખું ગામ આવેલું છે. જમીનમાં ગમે ત્યાં ખોદકામ કરીએ એટલે હજારો વર્ષ જૂની મૂર્તિઓ અને શિવલિંગો લાખોની સંખ્યામાં નીકળે છે મિત્રો. તો આ છે એ ગામ એટલું શાંત છે, મજા આવે એવું છે. દેખાય એ રૂમમાં હું રોકાણો હતો. આ હોટલમાં અહીંયા જમવાનું હતું, મજા આવી ગઈ. એકદમ શુદ્ધ બનાવે છે અને માણસ પણ મજાના છે. હજી સુધી મારી પાસે પૈસા નથી લીધા મિત્રો. રાત્રે જઈમો, સવારમાં જઈમો, નાસ્તો પાણી આપણો, અને મને કે આવો પછી કે લાસ્ટમાં હિસાબ કરશું. એટલે આવા વિશ્વાસુ માણસો છે મિત્રો. આ છે આપણું બાઇક. મિત્રો આ છે લાખા મંડલની મેઇન માર્કેટ અને આ લાખા મંડલનો ગેટ છે. અહીંથી સીધું આપણે મંદિર તરફ જવાનું છે. ગોડ હોમસ્ટે અહીંયા જા છે મિત્રો. આવી પહોંચીએ છું આ મંદિરે. મિત્રો આ શિવલિંગ ઉપર છે ને જલ ચડાવવાથી આપણું પ્રતિબિંબ પડે છે, રિફ્લેક્શન થાય છે. તો જો દેખાતો તો રિફ્લેક્શન મારું પડતું હશે. હમણાં જલ ચડાવ્યું છે, શિવલિંગમાં રિફ્લેક્શન કાયદેસર દેખાય છે. આ છે લાખા મંડલ મંદિર. મિત્રો આ મેઇન રસ્તો છે. અહીંથી તમે આવો ને તો ગાડી ત્યાં સુધી પહોંચી જાય. મેઇન એન્ટ્રન્સમાં એન્ટર કરતા એનો ઇતિહાસ પ્રાચીન આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો મિત્રો વિડીયોમાંથી. હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં છે. પહેલાં ઇતિહાસમાં કહે છે, અહીંના સ્થાનિકો પણ કહે છે કે આ બે જે મૂર્તિ રહી ને એની વચ્ચે મૃત વ્યક્તિને લઈ આવવામાં જો આવે ને મિત્રો તો એ થોડી ક્ષણ માટે જીવિત થઈ જાય છે. મિત્રો વિચારો કે મરેલો માણસ અહીંયા જીવિત થાય તો એવી કેવી શક્તિ હશે. અને પાંડવોએ પણ અહીંયા પૂજા કરી છે. પાંડવની ગુફા પણ છે. પાંડવો ઘણો સમય અહીંયા રહ્યા હતા. અને આ મંદિર એટલું ઓલું છે કે તમે એન્ટર કરો એટલે અલગ જ વાઇબ્રેશન આવે શરીરમાં. વિચાર કરો મિત્રો કે આવું લગભગ બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય મંદિર છે નહીં ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં. ઇતિહાસમાં એવું કહેવાય છે. ગૂગલ ઉપર માહિતી જોઈ લેજો મિત્રો. તમે યમુનોત્રી સાઈડ જાઓ, ચારધામનો પહેલો પડાવ યમુનોત્રી સાઈડ જાઓ ને, બડકોટથી 20 કિલોમીટર પહેલાં યમુનોત્રી રોડ ઉપર 5 કિલોમીટર અંદર આવો ને એટલે લાખા મંડલા ગામ આવે છે મિત્રો. આ બધી મૂર્તિઓ મિત્રો જોતા જાઓ તમે. ગામ આખામાં આવી મૂર્તિઓ છે. અને શિવલિંગોનું ગામ પણ કહેવાય છે, શિવનગરી પણ કહેવાય છે. હજી આગળ આપણે વિશેષ માહિતી પૂજારી પાસેથી લેશું. તમારે જો ગામમાંથી આવવું હોય તો મિત્રો આ રસ્તેથી આવી શકો. અહીંથી સીધો આમ જાઓ એટલે સીધો આ રોડ ઉપર નીકળે. જો ઓલો ગેટ દેખાય અહીંયાથી તમે એન્ટર થાઓ. બાજુમાંથી બસ સ્ટેન્ડ ને ટેક્સી સ્ટેન્ડ ને હોટલો પણ આવેલી છે. આ ટાઈપનું જૂનું એકદમ બનાવેલું છે મિત્રો. અતિ પ્રાચીન માહિતી પછી વિડીયો પોઝ કરીને મિત્રો જોઈ લેજો. पंडित महिमानंद गौड़ है जी। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से, गांववासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने, गौ माता।
एक जमुना नदी पार से आते थे। महाराजा की मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। आज हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, ये सब गाय माता की देन है। गाय माता के शरीर के अंदर रूम रूम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है इसकी खोज गायनी की है। आपने अंदर पार्वती माँ के छोटे चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। यहाँ पे बगल में यहाँ पे लाल रंग का शिवलिंग है, यहाँ पे पीछे ना यहाँ पे लाल कलर का शिवलिंग है, वो त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लिए जी श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए सोयतबंद रामेश्वर में, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में की है। ये लाल रंग का शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है या तो सोयतबंद रामेश्वर में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। यहाँ पे बगल में हरे कलर का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से यहाँ पे की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया। लक्ष्य ग्रह वो ये जगह है जहाँ पे ये गिरिलें लगी हुई चारों तरफ ये जगह है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी। और नीचे सड़क पे आपको आते समय गुफा मिली है, नहीं मिली, आपको देख लेना आप लोग, वो है पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। पीछे 2 मूर्ति है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी, बोलो जरा बेटा? सती माता। सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, अपने पति के लिए, पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा से चल के आया है, ये देवताओं से चल के आ रहा है बेटा। तो सतयुग में सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, वो अपनी मायका चले गई और वहां जाके उसने सभा के बीच में अपने पिताजी को नमस्कार किया। दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं लिया, उसको अपने पति की याद आई, मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहां जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया। क्रोध किसको आया? सती को क्रोध आया। हवन कुंड में कूद पड़ी, भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है, उसको क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका, वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। जब वो दोनों वीर
सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा, महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला, जाओ मेरे वीरों, और दक्ष राजा का, मेरे ससुर जी का यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को भंग करो और उसका सिर काट देना। कहीं तुमने ऐसा नहीं बोल देंगे अपने ससुर जी का सिर काट दो, समझे जी। शंकर जी ने बोला वीरों के लिए कि जाओ मेरे वीरों, और दक्ष राजा का, मेरे ससुर जी का सिर काट देना, उसका यज्ञ भंग कर देना। जो जानवर सबसे पहले आपको रास्ते में मिलेगा, उसका सिर काट के मेरे ससुर जी के धड़ पे लगा देना। तो इस समय राजा दक्ष का सिर किसका है? जो राजा दक्ष का सिर है वो बकरे का है, वो समझे जी। तो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र। त्रेता युग आया, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय। द्वापर आया, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में इधर वाली मूर्ति वो भगवान शंकर जी हैं, उनका हीरे मोती का मुकुट है। इधर वाली मूर्ति दानव है, उसके खोपड़ी पे इतनी बड़ी मुंडी है, वो मसान का निशान है। जो यहाँ पे बड़ा चौक में इस ऊपर शिवलिंग दिख रहा है आपको, ये बड़ा शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसके जल का छेड़ा मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। जो शिवलिंग आगे है जिसमें आपने जल चढ़ाया, अभी उधर नहीं चढ़ाया, आपने चढ़ाया, जिस शिवलिंग पे आपने जल चढ़ाया है वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। पारदर्शी शिवलिंग का क्या मतलब है? कुछ पता है आपको? दिखता है ना, वो तो सबको दिखता है, पर उसका उत्तर क्या है? सीता माता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है ना। तो जब रामचंद्र जी और हनुमान जी ने पता किया, माता जी का खोज की है कि माता जी पंचवटी में है, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने वहां पे जाने की तैयारी करी और वहां पे लड़ाई लड़ी है और माता जी को जीत के वापस लाया है। कहाँ लाया? अयोध्या नगरी में। तो जब अयोध्या नगरी में लाया है तो माता जी ने कहा हनुमान जी के लिए कि हे भक्त हनुमान जी, आप हमारे बहुत प्रिय भक्त हैं मेरे पति के और मेरे भी, आपने हमें वहां से वापस लाया है, मैं आपको कुछ इनाम भेज देना चाहती हूँ। तो उसने बोला, हनुमान जी ने, माता जी दो मैं स्वीकार लूंगा। तो माता जी ने अपने गले से हीरे मोती की माला उतारी और उसको भेंट दी। हनुमान जी ने हाथ किया और माला को लिया और उसने अपने माथे पे लगा दिया, अपने माथे पे लगा, हृदय में भी लगा दिया उसने माता जी की माला, और उसको तोड़ के उसके सारे दाने हीरे मोती के बिखरा दिए, नीचे तोड़ दिए, उसको बिखरा दिया। माता जी को बड़ा गुस्सा हुआ। माता जी ने बोला, भक्त जी मैंने तो आपके लिए अपने गले की माला उतार के भेंट दी और आपने तोड़ के बिखरा दिया। उसने कहा, माता जी मुझे तेरी माला की, कोई हीरे मोती माला की कोई जरूरत नहीं है, आपने हीरे मोती की माला दिखानी है। उसने अपनी छाती फाड़ी और उसके अंदर राम लक्ष्मण जी सीता, वो बेहोश हो गई माता जी। उसी ने फिर उसको होश में निकाला, समझे जी। तो ऐसा ही उसके अंदर जो आपका प्रतिबिंब दिखता है वो आप लोगों का प्यार भगवान ने, शंकर जी ने अपने अंदर समा लिया है। आप लोगों का प्यार, आपका प्यार अपने अंदर समा लिया है, इसलिए उसको पारदर्शी शिवलिंग कहते हैं। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। उस शिवलिंग के राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कभी सुना आपने राजा सगर को? राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी थी शिव की तपस्या? बोलो। हिमालय में। गंगोत्री से आगे है गौमुख, और गौमुख में भी नहीं करी तपस्या। गौमुख से आगे है तपोवन,
तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर तपस्या की और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। तो उसके जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, वो सीधे वैकुंठ धाम प्राप्त हुए। तो उस शिवलिंग के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितरों का उद्धार होता है। उसकी इतनी बड़ी महिमा है। वो शिवलिंग ये छोटी मोटी नगरी नहीं है। और आप लोगों को मेरे तरफ से और पुजारी के तरफ से, गांव की तरफ से नमस्कार है। सब लोगों को आपकी यात्रा सफल हो, मंगल हो, आपके लिए हमारा नमस्कार है। शंभू शंकरा